Sainath is begin the pressure. Start from the side screen end. Oh, nice start. Just push it on the short third man reason. Straight to the fielder. Oh, nice. Nicely done. Bob race to the boundary line for 4. Oh, it's a good stop by the fielder in the end. It's the waiting for the umpire decision. Umpire signal the leg by. Umpire, wait for a minute. We have to check the boundary. 1 minute, umpire. We have to check whether that is a boundary or not. Leg by okay. 4, huh? So the umpire signal the boundary. This is the first boundary of the morning through the leg by. And Jammu Kashmir score start with the extra runs. And off the mark, and very good delivery by Sainath Reddy. In the previous deliveries, that is the leg by, but it's a two-fielder chase, but it's unable to stop the boundary. Oh, nice gloves on the onside side to the fielder inside the 30-yard circle. Oh, just in the air, but no fielder there in that region. Gets the single, looking for 2 now. Comfortably taken 2 runs here. 2 more runs too. Ayaz, he's off the mark with the couples. And score 6 without a wicket. It's the only 2 fielder outside the 30-yard circle for the left-handed right-hander combination. 1 man in the deep third man region and 1 man in the deep cover region. And all the remaining fielder ends of the 30-yard circle. Oh, good effort by the fielder at the backward point region. This batsman gets the single comfortably, and end of the first over now. Jammu Kashmir 7 for no loss. It's a good start by Jammu Kashmir. Yesterday they lost the match against UP. Today Jammu Kashmir must win this game. ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎದುರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿತ್ತು. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರಲು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಫಾರ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 2 matches is lost in this tournament.
In the morning, Jammu Kashmir won the toss and elected to bat first. The innings second over, Prashant comes into attack from the main stage end. Oh, that's a good delivery. What a start in this over. That's a little bit bouncer delivery. Such a beauty delivery by Prashant Ram. Start with the excellent delivery. He's the right arm fast medium bowler. He played 30 matches, 24 wickets, economy under 7. Is the best in the career. 4 for 11. He's a very experienced bowler. Prashant Ram. Change the fielder now. Third man is back. Nice defense. Goes to the back foot and nice defense back to the bowler. It's only 2 men outside the 30-yard circle. 1 man in the third man region and 1 man in the long on region. Backward point, backward point, mid on, mid off. Short mid wicket region. And a short fine leg. That's a good delivery. That's a dot and delivery just outside the half stump. That's one more beauty delivery by Prashant Ram. This is a very important match for Jammu Kashmir. Oh, nicely done on the onside. Straight to the fielder at the long on reason. Just a single now. It's the last 1 ball to go in this over. This is the second over. The left hand and right hand combination. It is the catches the call and just out of the fielder. As an end of the over now, 2 gone, 9 without a wicket. It's a good start by Jammu Kashmir. It's a run rate under 5, but 9 without a wicket. Prashant. It's very good bowling so far by Prashant and Sainath for Telangana side. And Ayaz and Wasim Iqbal. The opening partnership is going on smoothly between these 2 batsmen. Ayaz not out on 3 from 9. Wasim not out on 1 from 3. It's both the strike rate 33.33. And again Prashant Ram. Prashant Ram is back into attack in his second over and the third over of this innings.
Was a nice shot, find the gap. What a shot, welcome boundary. Such a great shot, wonderfully. That is a magnificent one. Excellent drive. It's an extra cover drive. Such a talented shot by Wasim Iqbal. He knows nobody is there in the deep. Find the gap well. And first boundary for him. That is a much needed boundary for Jammu Kashmir in this stage. That's a glorious shot. Good footwork and good executed. Such a great shot. Once again, Sainath, this time right arm of the wicket. Oh, very good defense. Nicely pushed on the backward boundaries and straight to the field. Gets only a single. Good one. That's a good cricket. Sensible cricket by Wasim Iqbal. Previous ball gets the boundaries. In the next ball gets that single. It's a good rotate the strike between these two batsmen. For the left-hander batsman, third man is back. Short start on the ground. Beat the fielder. Oh, there's the fielder now. What a timing in the placement. Such a powerful shot. Lot of power behind the shot. Straight on the ground. What a shot. Look at that. Absolutely top class. Good water ball. Good use of feet. Goes to the back foot and find the gap. Well, very well. Start on the ground. Very well shot. That's a fine shot. Good to watch. Such a classical cricket shot by this time Ayaz. First fund for him. But nicely done on the onside. It's very quick runs. Very good call by the non-striker batsman Wasim. That is a good call. Such a wonderful. That's a very quick run. Good running between the wicket. It's very good understanding between these two batsmen. And comfortably taken single here. (19) without a wicket. Comes down the track, goes to the front foot, but finally paid. Just defends the ball, straight to the field. It's a good news for Jammu Kashmir. Good score on the board now. Without a wicket. Very good partnership is going on between these two batsmen, Wasim and Ayaz. Oh, nicely done on the onside. Once again, very quick run, very good running. Very good understanding between these two batsmen. Every run is very important. This is a very important game for Jammu Kashmir. He's already 2 matches he's lost by Jammu Kashmir. And end of the over, 3 gone, 20 without a wicket. Ayaz is not out on 8 and Wasim Iqbal not out on 7. Oh my goodness, what a such a cracking shot. That is an absolutely top class shot.
Look at that. Lot of confidence behind the shot. Powerful behind the shot. There's no chance for the any fielder. There is a huge gap. Fielder is there in the long on reason is find the gap. Excellent, and get a boundary here. Excellent. That is a much needed boundary for Jammu Kashmir. Oh, top edge. As a couple of bounce into the boundary line for 4. That's absolutely back-to-back boundaries. 2 in a row. Such a great shot down the track. He's looking for the big shot. That's looking for the big shot and down the track. Top edge. No chance for the fielder. Fielder inside the 30-yard circle. No fielder there in the third man reason. That's a gets a second boundary in this over. Back-to-back boundaries. Catches the call. No. That find the gap. Chase the fielder. Looking for 2 now. Oh, that is a boundary again. 3 in a row. What a shot. 3 boundaries. That is a much needed boundaries. First in the long on. Second in the top edge. Third on the onside. 3 in the row. Nice shot. Oh, find the gap and no chance. A couple of bounce into the boundary for 4. Such a great shot. 4 in a row. 2 expensive overs so far. 4 balls, 4 boundaries. What a shot. What a absolutely top class. ಎಂಥ ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತ. 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ 24 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 16 ರನ್ನಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದ್ರು ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. Oh, once again, shot for LBW. But umpire is not interested for that appeal. And no damage for Jammu Kashmir. Very good stage in Jammu Kashmir. The good position now. Without a wicket, it's very good opening partnership. Already 4 boundaries in this over. Nice shot this time. Deep square leg raiser. Find the gap. Ball rests to the boundary line for 4. What a shot. Into the fence. Into the boundary line for 4. This is the 5th boundary in this over. Very expensive over. 20 runs. All 20 runs come from the boundary. 5 boundaries in this over. What an over for Jammu Kashmir. Absolutely. He's on fire now. And end of the over number 4 now. 4 gone. 40 without a wicket. What a start. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು.
The fifth over. Nice defense, nicely Fisher on the onside, straight to the fielder. At the short, find leg reason. This is the fifth over of the game. 41 without a wicket. Touches the call, finally! Opening partnership is breakdown. What an outstanding fielding. Look at that. Absolutely. That's outstanding fielding. Such a great cat. Inside the 30-yard circle. Not an easy. Very good judgment and no mistake in the end. Such a great, absolutely outstanding fielding. This is a much needed wicket in this stage for Telangana. Telangana must break through in this stage because opening batsmen, both the batsmen are already set. So this is a much needed wicket in this stage for Telangana, and the Jammu Kashmir down the first wicket now. Final opening partnership is breakthrough. This is a big breakthrough by the bowler. Nicely done. Gets only a single here. This is the fifth over for Jammu Kashmir. 42 for the loss of 1. Oh, nice shot. Find the gap. No one there at the deep square leg reason. Ball raced to the boundary line for 4. What a shot. That is a much needed boundary once again. Such a great shot. Good executed. Goes to the back foot. Sensational cricket shot by this time Ayaz. He moves on to 13 from 13. Good use of feet. Goes to the back foot and find the gap. No chance for the fielder. Fielder is there in the deep mid-wicket boundary. Such a great shot. And a score 46 on the board. 46 for the loss of 1 now. Good cricket. That's a good cricket. Previous ball hit the boundaries. The next ball is not goes for the big shots. Good defense and in this over. Oh, that's a good. Nicely pushed on the onside. Gets only a single and end of the over. 5 gone. 47 for the loss of 1. It's a very big
That's a good over for Telangana. In this over, in the second delivery, he got a very important wicket. Yes, Prashant. Wasim Iqbal gone for 27 from 14 balls, 6 boundaries in his innings, strike rate more than 192. He's the set batsman. He's back to the pavilion. That is a huge damage for Jammu Kashmir in this over. Good over for Telangana. And end of the over, number 5, 47 for the loss of 1 now. Now, change the commentary. Welcome to Ajay Raj sir from Mangaluru for Hindi commentary. Welcome, sir. Over to Ajay Raj sir. हेलो शेख, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, शानदार तरीके से विवरण सुनाने के लिए। फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयोजन से राउंड विकेट ये गेंद थी और इस गेंद को थोड़ा सा पीछे हटते हुए ऑन साइड की दिशा में कलाइयों के इशारे से मोड़ने का प्रयास, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। लेग बाय के संकेत अंपायर कर रहे हैं। तो फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयोजन से कर्नाटका स्टेट दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की प्रस्तुति 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 में आप इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं। दो ऐसे टीमों के बीच में तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। राउंड विकेट गेंद थी, लेंथ में ज्यादा, गेंद को बहुत आक्रामक तरीके से स्ट्रोक के पीछे ताकत लगाकर उछालने का प्रयास किया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मिस टाइम कर गया और इस वजह से गेंद ज्यादा दूर नहीं जा पाई। रन्स अभी भी वहीं पर स्थिर है, 48 रन से 1 विकेट के नुकसान पर महत्वपूर्ण विकेट वसीम इकबाल का। आश्चर्य होता है जम्मू कश्मीर की इतनी शानदार सशक्त टीम जो 2 मैचेस में हार गए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है। अपने आन बान और शान को बचाने का समय उनके पास है। ऐसे 4-5 खिलाड़ी उनमें मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इस वक्त गेंद पर आते हैं। आक्रमण पर प्रशांत, स्ट्राइक एंड पर इस वक्त इश्ताक अहमद है। 1 रन, ये गेंद को खेल दिया और रनआउट का मौका बनेगा। फील्डर ने गेंद को उठाया, दोनों बल्लेबाज हां ना करते रह गए और गिल्लियां उड़ गए। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विकेट का पतन और इस विकेट के प्रायोजक थे 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। तो इश्तियाक का महत्वपूर्ण विकेट इस वक्त गिर चुका है और मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण विकेट जो पहले गिरा वसीम इकबाल का, उसके पश्चात दोनों बल्लेबाजों को सतर्क होना चाहिए था, क्योंकि उनको इस मैच को जीतने के लिए सबसे पहले टॉस तो जीता जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की जरूरत है। उसके लिए पार्टनरशिप की जरूरत है, भागीदारी की जरूरत है और ऐसी जल्दबाजी अगर वो करें तो निश्चित तौर पर उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा और भुगतान उन्होंने कर दिया। एक और अहम विकेट उनका गिर चुका है। 48 के कुल योग पर 48 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तमाम दर्शक जो यूट्यूब पर इस मैच का आनंद देख रहे हैं उन सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। जयराज का सादर प्रणाम। जो ढलती उम्र में हैं, बुजुर्ग हैं, उन सभी को नमन करता हूं। आयोजनकर्ताओं के साथ पीसीसीआई के जितने सारे सदस्य, मुख्य अंग यहां पर पहुंचे, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। वो इस वक्त बैठकर विराज कर इस क्रिकेट श्रृंखला के गरिमा को बढ़ा रहे हैं और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। जाफर भट्ट इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। अयाज ने आज बहुत अच्छा किया, 14 रन उन्होंने बनाए, 16 गेंदों का सामना किया, 2 शानदार चौके वो जड़ चुके हैं, जबकि आक्रमण पर गेंद को लेकर प्रशांत आ चुके हैं। ये बात अलग है कि उनके खाते में ये विकेट नहीं गिरा है, लेकिन विकेट गिरना जरूरी है उनके लिए, तेलंगाना के लिए। डिफेंस किया गेंद को इस वक्त। गेंद मिड ऑन क्षेत्र में रनर रखा गया है। 1 रन को डीप में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जा चुकी है, दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया, रन बढ़कर पहुंच चुका है 49 पर 49 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के बीच में मुकाबला है। कौन जीतेगा ये मैच जम्मू कश्मीर के लिए वैसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा तेलंगाना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मैच। बहुत अच्छी गेंद और बल्लेबाज चलते हो गए, क्या कमाल की गेंद थी। तेज तर्रार गेंद गुडलैंड स्पॉट से गिरने के पश्चात थोड़ा सा सीम का मूवमेंट बाहर निकल गई, बल्ले का सिरा दे बैठे, गेंद को खेलने के प्रयास में महीम स्पर्श करती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर समा गई और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण विकेट। और इस विकेट के प्रायोजक थे फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। तो आया इसका महत्वपूर्ण विकेट। लेफ्ट हैंडर प्लस कहा जाता है टीम के लिए, और मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए कप्तान को आना चाहिए। थोड़ी सी जल्दबाजी और दो महत्वपूर्ण विकेट गिरने के पश्चात आयास को थोड़ा संभलना चाहिए था, क्योंकि उनकी नैया जो कि डूबती हुई दिखाई पड़ रही। इस क्रिकेट श्रृंखला में 2 मैचेस वो हार चुके हैं। सशक्त टीम है, क्षमता प्रदान है, सक्षम बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि टैलेंट और स्किल आपके अंदर कूट कूट कर भरा क्यों ना हो, लेकिन कभी कभार समय अगर साथ नहीं देता है तो बात नहीं बनती है, और यही इस वक्त जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है। और ऐसे जबरदस्त बल्लेबाज उनके मौजूद हैं। आमिर हुसैन, वसीम इकबाल, जाफर भट्ट हैं और माजिद मागरे जैसे खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आक्रमण पर फिर से गेंद को लेकर गेंदबाज अपने इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर प्रशांत तैयार हो रहे हैं। और विकेट उनके गेंद मिडलर ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और बल्लेबाज सतर्क हो गए। माजिद ने गेंद को देखा, माजिद मागरे ने बहुत स्टाइलिश अंदाज में थोड़ा फ्रंट फुट पर पैर को ले गए और पिछले पैर को स्ट्रेच किया, फॉरवर्ड डिफेंस किया, बल्ले को थोड़ा सा घुमाया, गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर गई। रन लेने का अवसर नहीं। इसी के साथ The Soho Life is back, admired by families, awarded by juries. After the roaring success of Phase 1, the Times Integrated Township of the Year is now launching Phase 2. With a sprawling 7-acre clubhouse and over 125 amenities for your family to enjoy. Enjoy the serenity of lush greenery and over 3,500 native trees as you cycle or pace yourself around the 4-kilometer peripheral cycling and jogging track. Own your 2, 3 and 4 BHK sky-rise residences that's designed for villa-style living with the location advantages of Sajapur Road, Bangalore's fastest upcoming neighborhood. प्रशांत की गेंद ड्राइव कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है। फील्डर गेंद को कवर करने के लिए आ चुके हैं। एक्स्ट्रा कवर डीप में 1 रन मात्र मिलेगा। हालांकि बैट्समैन दूसरा रन चुराना चाहते थे, चाहने से बात नहीं बनेगी। बॉल एकमात्र रन से खुश होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के 7 रन बढ़कर पहुंच चुका है 50 पर। 50 का आंकड़ा पार हुआ। 50 अप, 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, यानी कि पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। 50 का आंकड़ा आपको मनोवैज्ञानिक रूप से कहीं ना कहीं विश्वास दिलाता है। एक और गेंद, राउंड विकेट गेंद को डिफेंस किया, बहुत अच्छी गेंद और उस गेंद को सम्मान दिया। माजिद मागरे इस वक्त समझ रहे हैं कि उनको क्या रोल अदा करना होगा। स्टंप्स के सीध पर आती हुई गेंद, डिफेंस किया गेंद को, बल्ले का मुंह खोलते हुए। एक और गेंद, ड्राइव किया गेंद को, फील्डर की दिशा में रन लेने का अवसर नहीं। कवर में फील्डर तैनात है, रक्षात्मक तरीके से समय थोड़ा लेने का प्रयास। माजिद मागरे मोमेंटम की तलाश में, उस छोर से गेंद। प्रशांत राउंड विकेट, थोड़ा सा पीछे हट गए। गेंद शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, रूम मिला था, लेकिन पूरी तरह से उसको प्लेस नहीं कर पाए। पीछे हटे और गेंद को ऑन साइड पर प्लेस करना चाहते थे। गेंद को ज्यादा तेजी के साथ आ गई, मिड ऑन की दिशा में गई। ड्राइव करने के प्रयास में फील्डर ने गेंद को लपेट लिया, समेट लिया, माफ कीजिएगा। रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। समय सवेरे का
9:25 माजिद बागरे स्ट्राइक एंड पर। एक और गेंद को डिफेंस किया फ्रंट फुट पर और फ्रंट फुट को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए बल्ले को साथ में ले आए। सॉलिड डिफेंसिव स्ट्रोक था। प्रशांत ने अब तक 8 मात्र रन्स खर्च किए। एक महत्वपूर्ण विकेट उनके खाते में। बाएं हाथ से राउंड विकेट वो गेंदबाजी करते हैं। उनकी गेंद फिर से थोड़ा पीछे हट गए। गेंद को पंच किया जरूर लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। फॉलो थ्रू में प्रशांत ने गेंद को गैदर कर लिया, फील कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ करेक्शन 7 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स स्कोर इज ऑन 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 7 ओवर के समाप्ति पर 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। करंट रन रेट 7.14 का चलता हुआ 7.14। प्रोजेक्टेड स्कोर 143 का बताता हुआ। तो लगभग 150-60 के आसपास अगर रन्स बनते हैं तो जम्मू कश्मीर निश्चित तौर पर उसको डिफेंड करने की ताकत रखता है। लेकिन इस वक्त तेलंगाना प्रयास कर रहा है कि जितने ज्यादा जल्दी हो विकेटों को वो प्राप्त करें, क्योंकि इस वक्त 3 ऐसे बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है जो परिस्थिति को बदल सकते थे और दबाव की स्थिति इस वक्त आ चुकी है जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो ऐसे समय में वो 1-2 विकेट फिर से प्राप्त कर लें तो बात बनेगी। 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। नए गेंदबाज आक्रमण पर। जी प्रशांत, इत्तेफाक से दोनों प्रशांत हैं आक्रमण पर। इस छोर से आ रहे हैं जाफर भट्ट। 2 के व्यक्तिगत योग पर 2 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की पहली गेंद। दाहिने हाथ से विकेट मिडल लेग स्टंप के लाइन पर थी और कुछ ज्यादा नहीं किया, आने दिए बल्ले पर। कलाइयों को थोड़ा सा घुमाकर गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में धीरे से खेल दिया और आसानी के साथ 1 रन को बटोर लिया है। तो मैंडेटरी पावर प्ले के पश्चात फील्ड प्लेसमेंट जो है उसकी रूपरेखा है, उसमें अगर देखा जाए तो नजदीकी खिलाड़ियों में मात्र 2 खिलाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पर, और डीप में कवर डीप में रखा गया है। लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड रखा गया है। ऑन साइड पर देखा जाए तो जो बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है उसमें मिड विकेट डीप में रखा गया है। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में एक खिलाड़ी तैनात और विकेट। और इस गेंद को घुमाकर खेलने का प्रयास था। विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को 10 स्थानों में लेने के प्रयास में वो थोड़ा सा लुढ़क गए। अंपायर ने अपना समय लेते हुए संकेत किया कि वाइड है। 1+1 यानी कि 2 रन खाते में जोड़ लिए जाएंगे। 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थर्ड मैन डीप में रखा गया, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। सवेरे का प्रहर 9:30। मौसम बड़ा सुहावना है। आकाश में आज फिर से सूरज अपनी रोशनी को छिपाता हुआ। दाहिने हाथ से विकेट। अच्छी गेंद, टप्पा खाकर रफ्तार और बाउंस का एक अच्छा मिश्रण था, उसको खेलने के प्रयास में चूक गए बल्लेबाज जाफर भट्ट। थोड़ा पीछे हटते हुए गेंद को खेलने के प्रयास में मिस कर गए। गेंद की गति बहुत ज्यादा थी, विकेट कीपर के दिशा में निकल गई और रन सभी भी वहीं पर से रहे हैं। प्रशांत जी की गेंद और गेंद को हवा के रास्ते खेल दिया। लॉन्ग ऑन में फील्डर है, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और उत्साह का वातावरण इस वक्त तेलंगाना के खेमे में। बहुत शानदार कैच, पीछे की तरफ फील्डर गए और इस गेंद को उन्होंने आसानी के साथ हथेलियों में कैद कर लिया। इसी के साथ एक और विकेट का पतन और इस विकेट के प्रोजेक्ट है 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। वेलकम बैक 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। और
दिव्यांगों की क्रिकेट श्रृंखला जिसमें योगदान बहुत बड़ा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो, जैसा मैंने आपको कहा, दिव्यांगों के लिए शानदार प्लेटफॉर्म बनाने का बड़ा योगदान जो दिग्गज महानुभाव माननीय इस वक्त हमारे इस मंच पर बैठे हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे इस वक्त धीरज जी दिखाई पड़ते हैं, उसके अलावा गुरनाम जी बैठे हैं। धीरज जी क्रिकेटर कम और सेलिब्रिटी लगते हैं, बिल्कुल हीरो मटेरियल दिखते हैं लंबाई में और कदकाठी में। गुरुनाम जी को उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत शानदार क्रिकेटर और बड़े हंसमुख स्वभाव के इंसान हैं। बड़ा सहयोग सभी का मिला है, प्यार मिला है सर आंखों पर, इसी तरह से प्रयास करेंगे। आइए इस गेंद पर आते हैं और विकेट, और थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पीछे हटे, पंच किया गेंद को, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगाया और फील्डिंग कहीं ना कहीं मिस फील्ड हो चुकी है और जहां पर चौका नहीं मिल सकता था वो मिल गया। एक्स्ट्रा कवर डीप बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। तो इस चौके के साथ रन्स बढ़ चुके हैं और क्रिकेट को इसीलिए कहा जाता है कि इट्स अ गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का खेल होता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना आसान मौका फील्ड का हाथ से छूटकर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगा। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और तेलंगाना को सोचना होगा कि इस वक्त परिस्थिति उनके साथ चल रही है तो उसके साथ उनको आगे बढ़ता रहना चाहिए। बहरहाल एक और गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं और विकेट थोड़ा सा आगे निकल गया और गेंद को वहीं पे एडजस्ट करते हुए जैसे ही देखा कि बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं, गेंदबाज ने भी चतुराई दिखाई, गेंद को थोड़ा छोटा कर दिया। बल्लेबाज सतर्क हो गए, टैप के अंदाज में उन्होंने गेंद को खेल दिया, लेकिन रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। तो रन 57 पर। दाहिने हाथ से विकेट लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन थी और अंपायर को बाध्य होना पड़ा कि इस गेंद को वो वाइड करार दें। वेरिएशंस बहुत जरूरी है गेंदबाजों के लिए और मैं समझता हूं कि जी प्रशांत इसी प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन लेग स्टंप के आसपास जब भी गेंदबाज गेंदबाजी करते हैं तो उनको थोड़ा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि दिशा से अगर थोड़ी सी बाहर निकल जाए तो आप जानते हैं कि नियम के अनुसार अंपायर फिर उसको वाइड करार देते हैं। गेंद रफ्तार और लेंथ में अच्छी थी, लेकिन दिशा कुछ ज्यादा बाहर निकल गई, अंपायर ने कहा कि वाइड। और विकेट लॉफ्ट कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक है फील्डर के पास से दूर, उनको बीट करती हुई गेंद बंदूक से निकले गोले की तरह बाउंड्री लाइन के बाहर काउ कॉर्नर में और ये 4 रन। फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का करारा चौका था और इस चौके के साथ ओवर समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पर 62 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बेहतरीन चौका और उमर सुल्तान इस वक्त 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत चौका उन्होंने जड़ा, 2 चौके वो लगा चुके हैं, 3 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। माजिद मागरे इस वक्त थोड़े से ऐसा लग रहा है कि समय ले रहे हैं, शांत दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वो धीरे धीरे हाथ खोलने का प्रयास कर पाएंगे। दूसरी ओर कहा जा सकता है कि तेलंगाना ने जो योजना इस वक्त बनाई है, 4 विकेट जो प्राप्त कर लिए हैं, उसके दबाव का असर इस वक्त दिखाई पड़ता हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर। क्रिकेट मात्र गेंद और बल्ले का नहीं, उसमें मनोविज्ञान का बड़ा हाथ होता है। कोचेस आपको सिखाते हैं और कुछ मेडिटेशन जिसको कहते हैं, ध्यान, ये भी बहुत जरूरी है एकाग्रता बनाने के लिए, परिस्थितियों को संभालने के लिए। आपके मन पर, आपके मन में जो विचार आते हैं उसको किस तरह से आप इंप्लीमेंट करते हैं। ये गेंद थोड़ा पीछे हट गए, बल्ले का टॉप एज देकर कलाइयों के सहारे से गेंद को मोड़कर 1 रन को बटोर लिया। विकेट कीपर ने खुद परिश्रम किया। 1 रन के साथ रन बढ़कर 63 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 63 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आक्रमण पर प्रशांत एस आ चुके हैं, कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, 9 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। एक महत्वपूर्ण विकेट उनको प्राप्त हो चुका है और उमर सुल्तान 8 के व्यक्तिगत योग पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। स्पिन का आक्रमण चल रहा है, क्या कुछ होता है। एस प्रशांत की गेंद,
राउंड विकेट थी और इस गेंद को स्ट्रेच करते हुए, हालांकि डिफेंस करना चाहते थे और गेंद की लेंथ बिल्कुल बल्ले के पास नहीं आई, थोड़ा दूर रह गई और इस वजह से गेंद को थोड़ा घुमा भी दिया, कलाइयों को थोड़ा घुमाकर गेंद को पॉइंट की दिशा में मोड़ दिया जब तक फील्डर आ जाते। एक रन को दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया, रन बढ़कर 64 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। माजिद मागरे स्ट्राइक एंड पर 1 रन बना चुके हैं। राउंड विकेट बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया बहुत खूबसूरती के साथ, ताकतवर पंच किया, लेकिन लॉन्ग ऑफ में जो वाइडिश में है वहां पर फील्डर ने गेंद को समेट लिया। 1 रन को पूरा करने का समय माजिद के पास, रन बढ़कर 65 पर पहुंच चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। इस वक्त अचानक रनों की गति में शिथिलता आ चुकी है। राउंड विकेट गेंद, बहुत जबरदस्त हो, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की दिशा में फील्डर को बीट कर दी गई 4 रनों के लिए। 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और बेहतरीन चौका है। राउंड विकेट, एक और बार गेंद को पंच किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, लगातार दूसरा चौका और इस चौके के प्रोजेक्ट थे 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। अचानक 73 रन बन चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। औसत की बात जैसे ही मैंने कहा कि शिथिलता है, उसको तेजी के साथ बढ़ाकर 8.26 का कर दिया बल्लेबाज ने। उमर सुल्तान 17 पर जबरदस्त स्ट्रोक्स लगाने में सक्षम है, 2 लगातार चौके लगाकर साबित किया कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं। इस वक्त थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फ्रंट फुट पर गेंद को खेल दिया लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया प्रशांत ने और रन सभी भी 73 पर 4 विकेटों के नुकसान पर 9वां ओवर समाप्त हो चुका है। So that's the end of over number 9, and after the completion of 9 overs, score is on 73 for the loss of 4 wickets. Projected score अचानक 162 का बताता हुआ और दोनों बल्लेबाज इस वक्त कहना होगा कि योजनाबद्ध तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंद को देख रहे हैं, चुन रहे हैं और शॉट सिलेक्शन काफी अच्छा रहा है, खासतौर पर उमर सुल्तान की कहें, क्योंकि 2 स्ट्रोक लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जो उन्होंने लगातार चौके लगाए हैं वो प्लेसमेंट काफी बढ़िया था और टाइमिंग के साथ बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला गया स्ट्रोक था। इस वजह से ऐसा लग रहा है कि उनकी निगाहें जम चुकी हैं और वो इस वक्त अपने टीम को सम्मानजनक लक्ष्य देने के लिए बिल्कुल तैयार है। (73 for the loss of 4 wickets। 10वें ओवर की शुरुआत के लिए आक्रमण पर किसको कप्तान बुलाते हैं? कल्याण पटेल इस वक्त आक्रमण पर। कल्याण पटेल इस छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं और स्ट्राइक एंड पर माजिद मागरे। दाहिने से विकेट लेंथ में ज्यादा थी, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और बेहतरीन चौका माजिद मागरे के बल्ले से निकलता हुआ। जम्मू कश्मीर इस वक्त दिखा रही है कि समय बदल सकता है, समय बड़ा बलवान होता है। दोनों बल्लेबाज जम रहे हैं, माजिद मागरे अपने बल्ले का जलवा दिखा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हट गया और इस गेंद को, कल्याण की गेंद को पीछे हटते हुए, विकेटों को कवर करते हुए, पैरों को, फुटवर्क का बहुत अच्छा इस्तेमाल था, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को उन्होंने मोड़ दिया और छोर को बदलकर अपने पार्टनर को जिम्मेदारी सौंपी। रन्स बढ़कर 78 पर 78 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 78 for 4। दाहिने हाथ से विकेट, ट्राई किया फ्रंट फुट पर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि फील्डर वहां पर मौजूद है, रन लेने का अवसर नहीं है। अभी भी रन 78 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। कल्याण प्रयास कर रहे हैं
कि वो रनों को रोकें, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज मौका बना ही लेते हैं। शॉट ऑफ लेंथ थे और बहुत लूज गेंद थी जिसको इंतजार करते हुए ड्राइव किया, और मुझे लगता है कि अंपायर इस वक्त पुष्टि करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नो बॉल का संकेत किया। जी हां, गेंद बहुत ज्यादा आगे गिरी, उसके पश्चात 2 टप्पा था कर निकल गई, और इस वजह से अंपायर ने संकेत किया कि नो बॉल है। फ्री हिट का अवसर बल्लेबाज को मिलेगा ऐसे समय पर जब दबाव बढ़ाने की जरूरत है। कल्याण की ये गेंद जो नो बॉल करार दी गई है 80 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्री हिट का अवसर था और आगे निकलकर गेंद को उछालने का प्रयास किया, मिस कर गया। विकेट कीपर ने गिल्लियां उड़ा दी, लेकिन आप जानते हैं फ्री हिट के अवसर में बल्लेबाजों को एक ऐसा मौका दिया जाता है जिसमें ये तो गिना नहीं जाएगा, जो गिल्लियां उड़ा दी स्टंप का मौका तो नहीं है। 80 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और इस ओवर की एक और गेंद को लेकर कल्याण पटेल, माजिद मागरे 7 की व्यक्तिगत योग पर पहुंच गए। 11 गेंदों का सामना किया 1 चौके की सहायता से। दाहिने 14 विकेट, और देखा पहले बैकलिफ्ट का ऊंचा था, अचानक थोड़ा रोक लिया और शॉर्ट आर्म पुल भी करना चाहते थे। गेंद लेग स्टंप की सीट पर आई, इस वजह से अपने आप को रोकते हुए गेंद को थोड़ा अलग अंदाज में लगभग स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया। 1 रन को पूरा कर लिया, रन बढ़कर 81 पर 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद कल्याण पटेल उमर सुल्तान के लिए। 4 चौके अब तक लगा चुके हैं और खूबसूरत स्ट्रोक। 1 रन उमर सुल्तान के खाते में। 4 चौके की सहायता से वो 19 के व्यक्तिगत योग पर पहुंच गया। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया, तो इसी के साथ 10वें ओवर की समाप्ति हुई। 10 ओवर की समाप्ति पर 82 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। आप देख रहे हैं फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयोजन से कर्नाटका स्टेट दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि KSDSCA की शानदार प्रस्तुति 5th एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। दर्शकों की जानकारी के लिए जो अभी अभी YouTube पर मैच का आनंद उठाने के लिए आए हैं, उनको बता दें कि इस वक्त तेलंगाना और जम्मू कश्मीर के बीच में मुकाबला चलता हुआ। जम्मू कश्मीर के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज कुछ बदलाव देखने को मिला। मुझे लगता है कि खास तौर पर उन्होंने वसीम इकबाल को जो पहले भेजा वो बहुत अच्छा था। कहीं ना This is where we started. In 2009, Ramesh, Ratish and myself decided to take a leap of faith and start something new in Namma Bangalore. We had a clear goal to design communities enriched by Bangalore specific native plants, enhancing the overall quality of life. At Nambiar, we create communities with purpose, what we call the mindful approach. While our mindful principle focus on serenity and conveniences, our second principle, being thoughtful, is all about functionality. Common spaces should be friendly and easily accessible. Spaces designed for everyone, for everyday use. Aspect of sustainability which are future focused. We are a customer first company and everything we do is to ensure our customers get the best. For us, purpose always comes before profit. We never chase numbers. We chase smiles. That is what we call the soulful principle. Strike partnership that are connected to the soul. A partnership that collectively focus on one thing, surpassing customer expectations. Last 15 years, we associated with best out of best landlords, architects, designers, financial institutions, best professionals in this country to make our dreams into a reality.
Very good start. Very good start in this over by bowler name. Umpire bowler name అని చెప్పు తెలుసా? Prashant Ram. Oh, nice find. That's fine. The gap. Excellent. No chance of the fielder. What a cracking shot. Absolutely. Oh, what a shot. That is a magnificent one. Beautifully try on the offside. No one there. That is a find the gap between the three fielders. Beat the three fielders. Look at that. Such a confidence. Such a wonderful cracking shot by Umar Sultan. He's in good form. He's on fire now. He's 23 from 13. It's nicely punched on the mid-off region. No chance for any runs. Try to the fielder. 86 on the board. Is the current run rate more than 8 now? Still 6 wicket in hands. 130. 140 is the average score in this pitch in 20 overs. It's the more than 150, 160 is a very good score. Oh, that's this time. Nasir played on the fine leg regions. There is a man in the deep. Straight to the fielder. Batsman gets only a single here. That's a good shot. Oh, down the track and finally cut away. Straight to the fielder at the deep point region. Just the single. And end of the over now. 11 gone. 88 for the loss of 4. This is a very good partnership build up between these two batsmen in the fifth wicket. For the fifth wicket, 35 from 22. Good one. Very good. This is the very important game for Jammu Kashmir. ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ 2 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಈ ಪಂದ್ಯ ತುಂಬ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸೋತಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ. In the first match, Jammu Kashmir, in the first match against Mumbai, lost by 8 wickets. And the second match against Uttar Pradesh, lost by 8 wickets. Both the match lost by 8 wickets. This is the must winning game match for Jammu Kashmir. Bowler's name. Kalyan Patel. Shot! What a shot! Look at that! Good use of it. That is an absolutely find the gap in excellent, magnificent on sensational cricket shot. Terrific one. ಎಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತ. ಫೀಲ್ಡರ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಮೂವ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. No, the fielders, no chance to stop that boundary. No fielder moved. That's a good shot. And one bounce into the boundary.
This time straight on the ground. There is a man in the deep. Couple of bounce to the fielder at the long on reason. Just a single. Just a single. He moves on to 24. Mazid down, not out on 14. What a partnership. And for the fifth wicket. Oh, this time nicely punched on the point reasons. There is a fielder. No chance for any runs. Kalyan Patil in his second over. Shot this time. For like reason, what a shot. This one out of the boundary line, row for 6. Oh my goodness, such a great strike. Goes to the back foot. No one there at the deep. Find the gap, excellent. Clear the boundary line rope. At the deep backward square leg reason over the boundary line row for 6. What a shot. That is a massive one. This time cut away to the offside. Find the gap. Oh, fun. Not able to. Unstoppable now. He's on fire now. What a shot again. That is a cracking one. Lot of powerful behind the shot. Such a great shot once again by Umar Sultan. He moves on to 34. Fielder is there, but he's unable to stop the boundary. It's not an easy, but it's a good attempt by the fielder. Oh, this time Mazid. Nicely done. That is a sensible cricket by Mazid Magre. Very good over for Jammu Kashmir. 100 up now. 103 for the loss of 4 in the end of the over number 12. 104 for the loss of 4. 105 for the loss of 4 after completion of 12 overs. Very good over for Jammu Kashmir in the 12th over. Oh, partnership brings up the 50 now. What an innings between. Excellent partnership is going on between Majid and Umar in the 5th wicket. For the 5th wicket partnership, look at that. 50 from 27. Oh, this is the game changing of the innings. $105 for the loss of 4 after 12 overs. It's a current run rate 8.75. Projected score, look at that now. More than 170. That is a good news for Jammu Kashmir. Shot! There is a man straight to the fielder. Oh my goodness. That is a huge damage for Jammu Kashmir in this stage. Big wicket. That's a big wicket. Mazid Magre. He set the bat. Set batsman back to the pavilion. In this stage, Jammu Kashmir. Very good stage after 12 overs. But this wicket is a very huge damage for Jammu Kashmir. But a wonderful innings comes to end as back to the pavilion. Is very disappointment. But his contribution is very excellent for the team. He's gone for 25 from 18. 3 boundaries and 1 sixes. His strike rate 138. Good innings comes to end. Well played. Very well played. Unfortunately, looking for the big shot, but there is a man in the deep. Nicely taken in the end. And Jammu Kashmir down the 5th wicket in the 12.1 overs. S. Prashant is the bowler. He got a very big wicket in this stage. The very first ball of the 4th over.
S. Prashant start with a wicket in this over. Imtiaz Gul is the new batter. He is a right-hander batsman. He played 29 matches. Nearly 358, average 17.9. Mazid Magre caught by Prashant Ram. Bold Prashant. One not five for the loss of 5, and once again, S. Prashant. Nicely defense. No chance for any runs. It's a very good start in this over by S. Prashant. He's the left arm spinner. Oh, shot for LBW. It's a little bit height. Umpire is, it's not in touch because that is too high. Once again, as Prashant, this time left arm around the stump to Imtiaz Gul. Welcome to Manipal Hospital. For the ambulance and ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು nicely done. Straight to the fielder at the backward point. Reason ambulance ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ನಡುವೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್, 13 gone, 105 for the loss of 5. This is the maiden over by S. Prashant. What an over. Maiden over, and he got a very important wicket. This is a big over. That's a good over for Telangana. Maiden and got a very important wicket. 105 for the loss of 5. The current run rate little bit comes down now. 8.08. Well bowled by Prashant in the previous over. His spell is over now. 4 overs, 2 for 19. Good over comes to end, and the innings 14th over. Start with the wide. It's not a good start. Outside the leg stump. Umpire called as a wide. So one extra runs added to the score, moves up to 106 for the loss of 5. 106. Nicely done. Straight to the fielder at the backward point. Reason just to say no chance for any runs. Good fielding in the end. One more partnership is required for Jammu Kashmir in this stage. Just 5 wicket in hands. Down the track. Nicely paid on the onside, straight to the fielder. Just a single. Very well played so far by Umar Sultan. 26 from just 18.
One more. Too wide outside the leg stump. No doubt about it. That's a wide. Second wide of this over. Oh, good comeback. Very good comeback by G. Prashant this time. After 2 extra runs, this is a fair delivery. Nicely done, straight to the fielder. Very good fielding, very good big effort. But batsman gets a very quick single here. It's good running between the wicket. Imtiaz and Umar Sultan. Finally, Imtiaz Gul off the mark after 7 balls. He faced it after 7 balls. He's off the mark with the single. And the score 109 for the loss of 5. Shot, find the gap, no one there, no chance of the fielder. Much needed boundary for Jammu Kashmir. Absolutely sensational one. That's the terrific cricket shot. Goes to the back foot, find the gap, and the timing and the placement is absolutely good. No one there at the deep square leg reason for 4. And 4 more runs to he moves on to 30 and the score 1-1-3 for the loss of 5. This time nicely glance on the short fine leg reason. There is a man. Batsman comfortably taken single here. And end of the over. 14 gone. 1-1-4 for the loss of 5. Current run rate 8.14. And the projected score now more than 160. It's good score on the board by Jammu Kashmir. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಪೈರ್ಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಪೈರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡಾಗದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್. Oh, looking for the cheeky shot, but there is a man in the short fine leg reason. No chance for any runs. Try to the fielder. No, that's a no chance for any runs. Try to the fielder. Good fielding in the end. Shot straight on the ground, but there is a man in the deep. At the long on reason, excellent fielding, good throw, nice throw in the end. Batsman gets only a single. Good one. Once again, Kalyan Patel in his 3rd over now. Shot, clear the boundary line, off, no chance of the. That is a huge one. That's the maximum. What a shot. Glorious to watch. Good use the feet. Gets the ball over pitch and clear the boundary line, row for 6. At the long on reason. Such a great shot. That is a massive one. That's a maximum one. Much needed 6s in this stage for Jammu Kashmir. Look at that. Absolutely is fire. It's a terrific cricket shot. Yanta mana mohaka ಹೊಡೆತ.
ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ನ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಬಾಲನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮನಮೋಹಕ ಹೊಡೆತ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಗುಲ್, he is on fire now. Good strike. Nicely punched on the offside. That's a sensible cricket. That's a good cricket. Straight to the fielder at the short cover region. Good batter. Excellent batting. Imtiaz Gul, 7 from 9. Nicely done on the onside. Nicely pushed on the onside. Straight to the fielder at the short mid-wicket region. Gets a single. Very well played. Well done. Umar Sultan. He's on strike now. 32 from 22. 6 boundaries in his innings. Look at the strike rate. 145. Short and this time no one there at the deep. Oh. Straight to the fielder. At the deep point region. Just a single. And end of the over. 15 over gone. Jammu Kashmir 1-2-3 for the loss of 5 is the current run rate. 8.20 is the projected score, more than 160. That's a good news for Jammu Kashmir. 150-160 is the very good score in this pitch. And Imtiaz Gul is not out on 8 from 10. 1 big sixes in his innings. Umar Sultan is not out on 33 from 23. 6 boundaries in his innings. His strike rate 143.48. In the bowling side, Kalyan Patel 3 overs, none for 35. It's too expensive by Kalyan Patel. His economy is more than 11. And G. Prashant is a successful bowler, 3 overs, 2 for 22. His economy is 7.33. Finally, after 15 overs, Jammu Kashmir 1-2-3 for the loss of 5. And change the commentary now over to Ajay Raj sir from Mangaluru. Over to Ajay Raj sir. थैंक यू दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर इस वक्त सुदृढ़ स्थिति जिसको कहते हैं दिखाई पड़ता हुआ 123 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। कप्तान कल्याण पटेल काफी महंगे खर्चीले साबित हो गए, और कप्तान अगर खर्चीले साबित हो तो टीम का क्या होगा। ऐसे में कप्तान इस वक्त अच्छे गेंदबाज को आक्रमण पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। साईनाथ रेड्डी आक्रमण पर, इस छोर से मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज। स्ट्राइक एंड पर उमर सुल्तान। दाहिने हाथ से उधर विकेट, ये गेंद तेज गेंद थी, बिल्कुल ऐसा लगा 135-40 की रफ्तार थी। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर तेजी के साथ साई साई करते हुए निकल गई, और बल्लेबाज अंतिम क्षणों में पीछे हटते हुए बल्ले का सिरा देना चाहते थे, चूक गए, मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और साईनाथ रेड्डी फिर से गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। शॉट ऑफ लेंथ थी, मौका मिले इस वक्त, हालांकि गेंद थोड़ा देर से आ गई, उसको देखते हुए दबाकर गेंद को पीछे हटते हुए खेल दिया। रन लेने का अवसर अभी भी नहीं मिलेगा। रन्स 124 5 विकेटों के नुकसान पर तेजी के साथ रन्स बन रहे। करंट रन रेट 8.09 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 162। इम्तियाज गुल के लिए गेंद, अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की थी, उसको जड़ से निकाल कर खेल दिया ऑन साइड की दिशा में। बहुत योजनाबद्ध तरीके से एक एंगल को लेकर गेंद सीधे डिप होकर कदमों तले आई, उसको देखते हुए दबाकर गेंद को पुश पर कर दिया, सुरक्षित भी किया और एक रन को तेजी के साथ पूरा भी कर लिया। रन बढ़कर 125 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। और इम्तियाज के लिए गेंद पीछे हटे, गेंद को बल्ले पर आने दिया, फिसलने दिया, कट कर दिया, गेंद थर्ड मैन डी पे जा चुकी है।
एक रन और मिल जाएंगे बल्लेबाज को। इस एक रन के साथ रन बढ़कर 126 पर 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा औसत चलता हुआ कल्याण पटेल की गेंदबाजी की अगर बात करें तो 3 ओवर्स में 35 रन उन्होंने खर्च किए हैं 11.67 के औसत से। और साईनाथ रेड्डी 6.38 का औसत। इस वक्त तीसरा ओवर उनका चल रहा है। बहुत विकेट थी, लेंथ में ज्यादा ड्राइव कर दिया गेंद को, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जा रही है, सर पर जमीन से लुढ़कती हुई गेंद, फील्डर लॉन्ग ऑन पर आ चुके हैं। एक रन को दौड़कर पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल्स आसानी के साथ इस वक्त बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त उनकी बल्लेबाजी में वो विश्वास दिखाई पड़ता हुआ एक सम्मानजनक लक्ष्य की ओर वो बढ़ रहे हैं। 150-60 के आसपास निश्चित तौर पर रन बन सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता हुआ। वो विकेट फ्रंट फुट पर स्ट्रेच किया, अब गेंद को खेल दिया, बल्ले का सिरा लगकर गेंद गई है थर्ड मैन डीप में। एक रन दौड़कर पूरा कर दिया है, रन बढ़कर 128 5 विकेटों के नुकसान पर। उमर सुल्तान 35 के व्यक्तिगत योग पर ओवर समाप्त हुआ 16 ओवर के समाप्ति पर 128 5 विकेटों के नुकसान पर। उमर सुल्तान 35 के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे 26 गेंदों का सामना किया। बहुत कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है, 6 शानदार चौके जड़े, जबकि इम्तियाज गुल ने 13 गेंदों में 11 रन बनाए और एक सपोर्टिंग रोल वो अदा कर रहे हैं इस वक्त अपने पार्टनर का साथ देते हुए। साईनाथ रेड्डी का ये ओवर समाप्त हुआ और 3 ओवर में उन्होंने 19 रन खर्च किए हैं 6.33 के औसत से। कल्याण पटेल कप्तान थोड़े खर्चीले साबित हो गए, 3 ओवर में 35 रन उन्होंने दिए हैं 11.67 के औसत से। प्रोजेक्टेड स्कोर जैसा मैंने आपको बताया कि 160 इस वक्त दिखाई पड़ता हुआ, करंट रन रेट 8 का चल रहा है। तो योजना शुरुआत में आज जम्मू कश्मीर के कप्तान ने जो टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कहीं ना कहीं योजना थी कि 150-60 के ऊपर वो रन्स बनाएंगे और सफल हो गए। बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। पिछले 2 दिनों में जो गलतियां की थी जम्मू कश्मीर में, उसमें थोड़ा सा सुधार दिखाई पड़ता हुआ। ये बहुत जरूरी है कि कप्तान बल्लेबाजी और गेंदबाजी में किस क्रम पर किसको भेजें, इसका निर्णय बहुत जरूरी है और किस तरह से प्रेशर को वो हैंडल करते हैं। और जम्मू कश्मीर में इस मैच में वो ऐसा लग रहा है कि अच्छा कमबैक कर रहे हैं। इम्तियाज स्ट्राइक पर ये गेंद अच्छी गेंद थी, स्टंप्स के सीट पर आई और थोड़ा नीची रह गई, बल्लेबाज को झुकना पड़ा और गेंद को दबाकर उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। इम्तियाज स्ट्राइक एंड पर 34 के व्यक्तिगत योग पर बल्लेबाजी करते हुए दूर वाले छोर से इस ओवर की एक और गेंद और देखिए स्टेप आउट किया, गेंद को लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले को लगती हुई गेंद भारी मोटा सिरा लगकर हवा में थी और गली में डीप में 3 खिलाड़ी गेंद को रोकने के लिए तैयार हुए। आखिरकार एक ने गेंद को रोककर थ्रो कर दिया। बल्लेबाज के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोरे। वन शॉट का संकेत अंपायर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। केसीए के क्वालिफाइड अंपायर लोहित जी और शुभ इस वक्त ऑन फील्ड बहुत शानदार तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो अंपायर कोई कसर नहीं रखना चाहते हैं और इस वजह से शायद इस वक्त बाउंड्री को चेक किया जा रहा है। बहुत जरूरी है निश्चित तौर पर और अंपायरों का अच्छा निश्चित तौर पर होना एक बड़ी क्रिकेट श्रृंखला के लिए बहुत बड़ी बात है और उस फैसले को वो बिल्कुल पुष्टि करने के पश्चात, आश्वस्त करने के पश्चात देते हैं। इस वजह से दोनों अंपायरों के मन में कहीं थोड़ी सी शक और शुबा थी और उसको लाइटली नहीं लेना चाहते। उन्होंने संकेत किया कि थोड़ा सा रिप्ले में देखा जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बाउंड्री लाइन पर क्या गेंद को अंदर की तरफ रोका गया या नहीं ठीक से। 128 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं।
स्टेप आउट किया, गेंद को ड्राइव कर दिया, बहुत बेहतरीन स्ट्रोक है, शानदार कहे, खूबसूरत करे, स्टेप आउट करते हुए कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई 4 रनों के लिए। तो इस बेहतरीन चौके के प्रोजेक्ट है 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। लेंथ थोड़ा ज्यादा थी, बल्लेबाज स्टेप आउट कर गए, डाउन द ट्रैक आकर गेंद को लगभग हाफ वॉली के अंदाज में लेकर कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव कर दिया, शानदार कवर ड्राइव 4 रनों के लिए। 132 देखते हैं पहले इस गेंद पर, अच्छी गेंद और इस गेंद को थोड़ा सा छोटा कर दिया, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल को लेकर आई और उस उछाल को दबाने के लिए बल्लेबाज को थोड़ा टो पर उछलना पड़ा और गेंद को नीचे दबाने का उनका प्रयास। रन्स अभी भी वहीं पर सिर है। डीबीएन के कैमरामैन और टेक्नीशियंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके सूत्रधार प्रवीण पाटिल जो हमारे कमेंट्री बॉक्स में पीछे बहुत शानदार तरीके से मिक्सिंग में जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थी, रूम था, लेकिन गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उस गेंद को कट नहीं कर पाए, बल्ला थोड़ा विलंब से चल गया। बाई के रूप में 1 रन का इजाफा हो चुका है। विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया। रन्स बढ़कर 133 रन कुल मिलाकर 5 विकेटों के नुकसान पर, 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 16वां जी नहीं 17वां ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है और प्रशांत राम, आश्चर्य की बात है कि तेलंगाना की टीम में बहुत सारे प्रशांत मौजूद हैं। ये गेंद ड्राइव किया, कवर में फील्डर मौजूद थे, एक्स्ट्रा कवर में उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास किया, रोका जरूर था लेकिन 1 रन को रोकने के बाद उन्होंने थ्रो कर दिया और उस थ्रो का परिणाम यह हुआ कि बल्लेबाज को ओवर थ्रो के रूप में 1 रन लेने का अवसर प्राप्त हो चुका है। तो जहां पर रन्स नहीं बन सकते थे वहां पर बन गया और इस 1 रन के साथ ही ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 17 पर। 17 ओवर की समाप्ति पर 134 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं 5th एलाइड नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। दोनों बल्लेबाजों की किस तरह से तारीफ करें। इम्तियाज गुल और उमर सुल्तान, जम्मू कश्मीर के जितने सारे चाहने वाले हैं वो आज बड़े खुश हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही है क्योंकि कमबैक कर रही है जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तेलंगाना की टीम बहुत शानदार है, सशक्त है, सक्षम है। वो क्या बाजी मारेंगे देखने वाली बात होगी। वो प्रयास कर रहे हैं दोनों सेट बैट्समैन को इस वक्त चलता करने के लिए क्या उपाय ढूंढ ले आते हैं कप्तान। वो विकेट गेंद थे, बैकफुट पर जी नहीं फ्रंट फुट पर थोड़ा स्टेप आउट किया, गेंद को पंच किया, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गई है, कोई मौका नहीं और ये 4 रन। उमर सुल्तान के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत चौका। सुल्तान किसको कहते हैं, बल्लेबाजी से उन्होंने दिखा दिया। थोड़ा सा आगे निकल गए, गेंदबाज ने गेंद को थोड़ा छोटा कर दिया लेकिन एडजस्ट बहुत खूबसूरती के साथ किया, उसको पंच किया, गेंद कवर बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। 138 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और विकेट दाहिने हाथ से मिस कर गए, गेंद को थोड़ा सा खड़े खड़े उछलने का प्रयास किया, मिस कर गए, बीट हो गए, विकेट कीपर से नहीं गेंद संभल पाई। बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा बल्लेबाजों को। 139 रन बन चुके हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। समय इस वक्त सवेरे के 10:20। अच्छी खासी रोशनी मैदान पर फैली हुई। स्टेप आउट किया था, थोड़ा आगे निकल गए और गेंद बिल्कुल कमर की दिशा में आई और उसको देखते हुए थोड़ा टॉप एज देकर गेंद को नीचे रखने का प्रयास किया बल्लेबाज ने। 1 रन को दौड़कर पूरा कर लिया, छोर को बदल लिया। रन्स इस एक के साथ बढ़कर 140 पर 5 विकेटों के नुकसान पर बन चुके हैं। जी प्रशांत कोटे का चौथा ओवर कर रहे हैं और अब तक 27 रन वो खर्च कर चुके हैं। 2 महत्वपूर्ण विकेट उनके खाते में। यह गेंद ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक था, टैकल करते हुए बहुत खूबसूरती के साथ योजना बनाई थी, लेकिन कप्तान और गेंदबाजी की जो मिली भगत है उसमें जो योजना उन्होंने बनाई क्षेत्ररक्षण की, उसकी तारीफ करनी होगी क्योंकि एक खिलाड़ी शॉट फाइन लेग पर है जिसने इस गेंद को रोका। निश्चित तौर पर चौका हो सकता था, संभावित चौके को रोक लिया।
बल्लेबाज वहीं पर हैं 140 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दाहिने हाथ से विकेट, लॉफ्ट ड्राइव किया गेंद को, खूबसूरत सो गया दोनों फील्डरों के बीच में से, गेंद मिड विकेट वाइड डिश में बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन। ऑन दी अप खेला गया स्ट्रोक था, पूर्वानुमान बहुत बढ़िया था, सही टाइमिंग के साथ बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को लेकर गेंद खेल दिया वाइड डिश मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फिफ्थ लाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 का एक और बेहतरीन चौका, 144 5 विकेटों के नुकसान पर। दाहिने हाथ से विकेट आगे निकल गए और जी प्रशांत ने दिखा दिया कि वो भी योजना बना सकते हैं। उन्होंने गेंद को थोड़ा और ज्यादा शॉर्ट कर दिया, उछल कर गेंद निकल गई, बल्लेबाज बल्ले को चलाते रह गए, मिस कर गए, ओवर समाप्त हुआ। तो इस वक्त ओवर की संख्या बढ़कर पहुंच चुकी है कुल मिलाकर 18 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स स्कोर इज 144 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 144 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 8 का औसत चलता हुआ प्रोजेक्टेड स्कोर अभी भी 160 का बता रहा है। उमर सुल्तान 44 पर पहुंच गए, उनको 6 रनों की जरूरत है अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। मात्र 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 8 बेहतरीन चौके लगाए। इम्तियाज गुल ने 16 रन बनाए, 17 गेंदों का सामना किया और 1 चौका और 1 छक्का वो जड़ चुके हैं। और इस वक्त दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो भागीदारी हुई है वो 35 गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण पार्टनरशिप इस वक्त चलती हुई तो कप्तान कल्याण पटेल फिर से आ रहे हैं आक्रमण पर अपने कोटे का एक और ओवर लेकर और उनके सामने इस वक्त स्ट्राइक एंड पर इम्तियाज गुल। दाहिने हाथ से विकेट, हवा के रास्ते गेंद को उछालने का प्रयास, गेंद और हवा में कल्याण पटेल के पास खुद मौका था, वो फॉलो थ्रू से पलट कर गेंद की दिशा में गए। गेंद को जज करना आसान नहीं था लेकिन उनके हाथ से छूट गई गेंद, मौका मिला बल्लेबाज को, वो जीवन दान मिल गया और 1 रन को दौड़कर उन्होंने पूरा कर दिया है। 145 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। पलटकर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी, जाने दिया। अंपायर कह रहे हैं कि वाइड है, 1 अतिरिक्त रन और और विकेट बहुत तेजी के साथ ड्राइव कर दिया, फील्डर वहां पर आ चुके हैं लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। 1 रन को दौड़कर पूरा कर लिया, रन इस एक के साथ बढ़ चुका है। धीरे धीरे अर्धशत 150 रनों की और इस वक्त जम्मू कश्मीर बढ़ता हुआ 147 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और कल्याण पटेल जो आज गेंदबाजी में बहुत ही महंगे खर्चीले साबित हो गए, अब तक 38 रन वो खर्च कर चुके हैं, 11.40 का औसत। बैकफुट पर गए, गेंद को कट करने का प्रयास, बल्ले का सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन में, फील्डर गेंद का पीछा कर रहा है, उन्होंने गेंद को जी हाँ अपने टो से, अपने बूट से, शूज से रोक लिया। लेकिन इससे पहले कि वो रोक कर उठाकर गेंद को थ्रो कर पाए, बल्लेबाजों के पास समय था कि वो कुछ रनों को बटोर लें। इन रनों के साथ रन बढ़कर 149 पर 149 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 19वां ओवर चल रहा है, इम्तियाज गुल 19 पर, उमर सुल्तान इस वक्त 45 पर खेल रहे हैं। 5 और रनों की जरूरत है उनको अपना अर्धशतक बनाने के लिए।
दाहिने हाथ से विकेट, फुल टॉस थे, आगे निकल कर खेलना चाहते थे, बल्ले का भारी मोटा सिरा लेकर गेंद गई गली में। फील्डर बस पेशेंटली तैयार थे, उन्होंने गेंद को अपने झोली में कर लिया। इसी के साथ महत्वपूर्ण विकेट का पतन, पार्टनरशिप टूट गई और बल्लेबाज इम्तियाज गुल आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं 149 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और इस विकेट के प्रायोजक थे फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। $149 for 6। कर्नाटक स्टेट दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन की यह शानदार प्रस्तुति है और हेमचंद्र और उनकी टीम, संतोष जी और उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। उन्होंने इस यादगार क्रिकेट श्रृंखला की रचना की। चुनिंदा अच्छे एम्पायर्स कमेंट्री पैनल में मेरे साथ दिवाकर जी हैं और डीबीएन लाइव टेलीकास्ट में अपना योगदान देता हुआ। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बल्लेबाज को। इस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन विश्वास कम था स्ट्रोक में, आधा अधूरा मन था और मिस कर गए विकेट कीपर ने। हालांकि गेंद को संभाल लिया, रन लेने का अवसर नहीं है। प्रवीण पाटिल डीबीएन के सूत्रधार, इस वक्त मुझे लगता है कि मिक्सिंग में प्रशांत जी बैठे हुए हैं। उस छोर से गेंद लॉफ्ट कर दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। गेंद लगभग काउ कॉर्नर की दिशा में गई है। 1 रन मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 19 ओवर के समाप्ति पर 150 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर ने छू लिया है। 150 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। आप देख रहे हैं फिफ्थ एलाइट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2026। वेलकम बैक। दाहिने हाथ से विकेट और आखिरकार ये विकेट भी गिर चुका है। एक और विकेट का पतन। बहुत शानदार गेंद थी और बल्लेबाज को चारों खाने चित कर गई। यू मिस मी, आई हिट यू। साईनाथ रेड्डी के तरकश से एक ऐसा तीर निकल गया जो बल्लेबाज को चारों खाने चित कर गया। ऑन दी अप ड्राइव करने के प्रयास में बीट हो गए बल्लेबाज और बोल्ड होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे 150 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। तो इस विकेट की तलाश थी इस वक्त तेलंगाना टीम। हालांकि कब से प्रयास कर रही थी, बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप। एक छोर पर अभी भी उमर सुल्तान बहुत शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी नजरें जम चुकी है। 45 रन वो अब तक बना चुके हैं, यानी कि उनको एक छोर पर विकेट बचाने का श्रेय भी जाता है। अब आने वाले बल्लेबाज उनका साथ कितना देते हैं। हालांकि ओवर अभी ज्यादा नहीं बचे, मात्र एक, हालांकि आखिरी ओवर पर गतिबद्ध चल रहा है। 5 गेंदें शेष बची हुई हैं और 5 गेंदों में बल्लेबाजों के पास कुछ और विकल्प भी नहीं है। उनको आक्रामक स्ट्रोक्स लगाने ही होंगे क्योंकि इसके बाद जितने सारे रन्स आएंगे वो प्लस कहा जा सकता है। 150 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। डीबीएन के जितने सारे कार्यकर्ता हैं उनको हैट्स ऑफ कहता हूं। कैमरामैन, टेक्नीशियंस, मिक्सिंग में
सभी मौजूद हैं। जयेश, साहिल जिनको प्यार से बंटी कहा जाता है, कार्तिक मौजूद हैं और प्रशांत जी पीछे बैठे हुए हैं। प्रशांत जी कहते हैं कि प्रवीण प्रोपराइटर हैं, प्रवीण जी कहते हैं कि प्रशांत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शख्सियत हैं। तो आइए इस वक्त इस गेंद पर आते हैं। गेंद को लेकर साईनाथ रेड्डी जो कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, अब तक एकमात्र विकेट उनके खाते में 18 रन, यानी कि बहुत किफायती गेंदबाजी उनकी रही है। हाई आर्म एक्शन के साथ उनकी गेंद थी और इस गेंद को हल्के हाथ से ड्राइव कर दिया। कुछ स्ट्रोक के पीछे ज्यादा ताकत नहीं लगाया, गेंद को जज किया और थ्रू द लाइन गेंद को ड्राइव कर दिया। जब तक लॉन्ग ऑफ में फील्डर आकर गेंद को समेट पाते, दौड़कर 1 रन को पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। रन बढ़कर 151 पर 7 विकेटों के नुकसान पर 151 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। आखिरी ओवर इस वक्त प्रगति पर चल रहा है और उमर सुल्तान क्या इन बचे हुए 4 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? 45 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 35 गेंदों में। साईनाथ की गेंद, साईनाथ को अगर देखा जाए तो बिल्कुल फिट दिखाई पड़ते हैं। एक अच्छे तेज रफ्तार के गेंदबाजों के लिए जो फिजिक्स जरूरी होता है वो उनमें दिखाई पड़ता हुआ। लंबे कदकाठी वाले हैं और दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं। साईनाथ की गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट, हवा के रास्ते गेंद को खेल दिया, कैच होगा। फील्डर गेंद के नीचे आ गए, लेकिन एक तरह से आते आते रह गए कहना ठीक रहेगा। उनके हाथ में नहीं आई गेंद, हवा का साथ भी मिला लेकिन एकाग्रित होकर गेंद को कैच नहीं कर पाए। जीवनदान मिला बल्लेबाज उमर सुल्तान को। कहा जाता है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और जो वीर पराक्रमी धैर्यशाली बल्लेबाज होते हैं किस्मत भी साथ देता है। एक और गेंद, साईनाथ की गेंद आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया मिड विकेट में। फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे, उनके हाथ से गेंद छूट गई और उमर सुल्तान पहले रन चुराना नहीं चाहते थे, दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन देखा कि फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई है और पार्टनर बुला रहा है तो फिर आखिर उन्होंने 1 रन को पूरा कर लिया। मुझे लगता है कि शायद उन्हीं को स्ट्राइक लेना चाहिए था क्योंकि वो अर्धशतक के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। 48 के व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी, 47 पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और गेंदें बची हैं केवल 2। या तो इस वक्त आमिर को 1 रन देकर स्ट्राइक का मौका देना पड़ेगा अपने पार्टनर को, क्या कुछ होता है। इस छोर से साईनाथ की गेंद और विकेट, थोड़ा आगे निकल गए, विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन बिल्कुल अजीबोगरीब स्थिति थी क्योंकि विकेट कीपर के दिशा में गई थी, उनको थोड़ा डाइव लगाना पड़ा गेंद को गैदर करने के लिए। ऐसे में जैसे तैसे उमर सुल्तान स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। उनके पास सिर्फ 1 गेंद बचा हुआ है, उनका व्यक्तिगत योग 48 है। क्या वो इस 1 गेंद में 2 रन बना पाते हैं? इस छोर से साईनाथ की गेंद 48 के व्यक्तिगत योग पर उमर सुल्तान। दाहिने हाथ से के ड्राइव किया, जड़ में आई गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेल दिया, 1 रन पूरा कर लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो हुआ लेकिन दिशाहीन थ्रो और बल्लेबाज उमर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया 2 रनों के साथ। है क्या बात है, कमाल की बल्लेबाजी। 2 रनों को आखिरी गेंद पर पूरा करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक नया कीर्तिमान श्रृंखला का एक और ऐसा खिलाड़ी उमर सुल्तान जिन्होंने हाफ सेंचुरी बना ली। 157 फॉर 7। निर्धारित 20 ओवर समाप्त हो चुके हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू कश्मीर ने 157 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर। 158 का यानी कि 158 का टारगेट है तेलंगाना के सामने। वो किस तरह से शुरुआत कर पाते हैं देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी में अगर देखें तो जैसा मैंने कहा कि साईनाथ रेड्डी ने अंतिम ओवर में आकर बहुत कमाल कर दिया। शुरुआत से ही उन्होंने बहुत कमाल की गेंदबाजी की, काफी इकोनॉमिकल उनकी गेंदबाजी रही है, स्पेल रहा है। 6.25 के औसत से उन्होंने 25 रन मात्र खर्च किए 4 ओवर्स में। कोई मेडन नहीं, एक महत्वपूर्ण विकेट उनका रहा है। तो इस वक्त कहना होगा कि वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली गेंदबाज रहे हैं।
तेलंगाना की तरफ से। कप्तान कल्याण बहुत ही खर्चीले साबित हो गए, समय ने साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ में थोड़ी गफलत हुई और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों ने सही समय पर कमबैक करने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि 157 रन एक सम्मानजनक लक्ष्य कहा जा सकता है, लेकिन क्या ये मैच उनके पक्ष में होगा या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त उठता हुआ, क्योंकि जब 2 मैच लगातार आप हार जाते हो तो मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ता है और ऐसे में तेलंगाना के पास अवसर, हालांकि तेलंगाना भी इसी स्थिति में चल रही है, उनको भी मैच को जीतना बहुत जरूरी है। तेलंगाना के लिए भी मस्ट विन मैच है, उनको भी जीत की तलाश है, तो उनको इस मैच को जीतने के लिए शुरुआत में मैंडेटरी पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। अगर मैंडेटरी पावर प्ले 6 ओवर्स में अगर वो एक अच्छी शुरुआत कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर 157-158 रनों का पीछा किया जा सकता है। तो देख